हाँ दैट्स मोर ब्यूटीफुल. Shall we start? I understood that you're missing it a lot. Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful morning to start with today's current affair. As usual, I'll start with a quotation so that I can motivate you. So, learning is not just about knowing facts, it's about understanding the world around you. This is said to us by Albert Einstein. So, let me start with a short story. So, imagine a student named Riya, she or Ankita. She reads the news every day but feels confused, right? Headlines change, policies are complicated, and sometimes she thinks that why does this matter to me, right? Why we are reading about this, right? Then she realizes something, that current affairs is not just about memorizing news. It is about seeing connection, how one decision basically affects people, right? And how it is affecting countries, how it is affecting environment, right? What changing we are bringing, right? So it's about thinking critically, asking questions, and forming your own understanding after understanding each and everything. So the real power here is understanding, not just knowing, right? So the news you read today is shaping the world you live in tomorrow. Yeah, right? This is why we are reading news, so that we can have the background, right? So with that we can have the analysis of the world, right? And we can connect things by understanding them, right? We are not reading news so that we can write UPSC only. We are reading news because we want some changes in the environment, right? So with this beautiful thought, we'll read our first current affair. Let's move towards it. Okay. So Kerala Assembly with unusual scene as CM corrects governor's policy address. Very important. So imagine there is a large hall that is filled with lawmakers, right? And this is Kerala Legislative Assembly that we are talking about, right? This is basically, there is happening one important meeting, right? That is about to begin. That is the budget session, right? So every year the budget session starts with the policy address, है ना? So policy address एक speech होती है जो explain करती है कि state government के क्या क्या plans है in coming year, what they are going to do, right? So according to the constitution, this speech is delivered by whom? This speech is delivered by governor, ठीक है? गवर्नर डिलीवर करता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि गवर्नर ये स्पीच लिखेगा नहीं, ठीक है? स्पीच इज रिटन, अप्रूव्ड एंड फाइनलाइज्ड बाय द स्टेट कैबिनेट, है ना? So the governor is basically expected to read it exactly as it is, ठीक है? उसमें से कोई भी changes नहीं कर सकते हैं, right? Governor cannot make any changes. जो जो exact words approve किए गए हैं, जो लिखे गए हैं, exactly that you have to deliver, ठीक है? ये rule होता है, right? So basically on this day, the governor of Kerala, Rajendra Arlekar, he stood up and delivered the policy address, right, in the assembly. So everything looked normal, ठीक है? सब कुछ ठीक ठाक था until the governor left the house. So soon after, the Chief Minister Pinarayi Vijayan, he stood up and he made a statement, ठीक है? ऐसी statement basically उन्होंने दी which surprised everyone, right? He said that the governor did not read the policy exactly as it was approved or as it was written, ठीक है? जैसे स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव की थी वैसे ही वो डिलीवर नहीं की गई है, कुछ चेंजेस बेसिकली गवर्नर ने किए हैं, राइट? तो उन्होंने बोला according to the chief minister, some important parts of the speech were omitted, ठीक है? कुछ sentences जो थे वो sentences change भी कर दिए गए, ठीक है? और यही नहीं, this basically removal was criticized, right, by the union government also, right? They also talked about the fiscal federalism, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है कि मनी कैसे शेयर हो रहा है between center and the state, right? और कुछ जगहों पर governor basically added his own words, ठीक है? Which were not in the original text. So this is highly unusual, right? So normally governors do not change even a single line of the policy, है ना? So they are expected to act in the aid or basically advice of the elected government, right? So because of this, chief minister took a very rare and very bold step, है ना? So he read out the missing portion himself inside the assembly. He then told the speaker that the only original cabinet approved speech should be treated as the official policy address. खुद से बनाकर नहीं बोलनी चाहिए जो changes वहां पर किए गए थे. तो ये जो इंसिडेंट था, दिस बेसिकली टर्न्ड इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट, राइट? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट दे वर मिसलेड. तो अगर तुम असेंबली में ही ऐसी चीज करोगे तो बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो, हाउ बेसिकली सिटीजंस आर गोइंग टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो दीस थिंग्स वर डिस्कस्ड इन देयर, राइट? तो ये बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस उठाकर लेकर आता है
कि हु रियली कंट्रोल्स द पॉलिसी एड्रेस, गवर्नर कंट्रोल करती है या फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, राइट। और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन उठाता है कि क्या सच में गवर्नर चेंज कर सकता है स्पीच दैट इज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, राइट। सो ऐसे सारे क्वेश्चंस उठने लगे बीच में। उसके बाद में यही नहीं, इसके बाद में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट एज वेल, राइट। सो दिस इंसिडेंट बिकेम इवन मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि इट हैपेंड जस्ट month before the assembly election, right? So this was not just a constitutional issue but balki it became also a political event, right? So this was the news. So there will be two keywords that I'll be telling you, right? And I'll also tell you about the thinker who gave those keywords that you can connect with this news and you can write it down. तो पहला हमारे पास है constitutional morality. Any idea what this is? This is given to us by B.R. Ambedkar. ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, अंबेडकर सेड द डेमोक्रेसी डज नॉट रन ओनली ऑन लॉज, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर रन करती है, ठीक है। वी बेसिकली रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड देयर इज लिमिट्स ऑफ पावर आल्सो, राइट। सो दिस वाज सेड टू अस बाय बी आर अम्बेडकर, राइट। इस चीज में बिल्कुल परफेक्ट बैठती है ये चीज, क्योंकि व्हेन द गवर्नमेंट चेंज द कैबिनेट अप्रूव्ड स्पीच, तो यहाँ पे दिखाता है कि कैसे लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज देयर, क्योंकि गवर्नर ने बेसिकली अपनी जो लाइन थी, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट थी, वो क्रॉस करी, राइट। सो ही इग्नोर्ड डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस है, he acted beyond a ceremonial role, right? एग्जाम में आप लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं that the incident highlights a breakdown of constitutional morality that is emphasized by B.R. Ambedkar, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास आता है ceremonial head versus हमारे पास आता है real executive। Okay, so when we talk about this, this is explained to us by Walter Baggett. So what this thinker says, उन्होंने बोला कि अथॉरिटी जो है दो चीजों में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास डिग्निफाइड पार्ट्स, मतलब एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होगा, फिर उसके बाद है एफिशिएंट पार्ट, मतलब बेसिकली रियल डिसीजन मेकर्स कौन है, राइट। तो यहाँ पर गवर्नर जो था वो डिग्निफाइड थे, राइट, दे वर सेरेमोनियल हेड देयर, राइट। फिर उसके बाद में इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करें तो वो रियल एग्जीक्यूटिव थे। तो चेंज करने के बाद स्पीच में गवर्नर ने क्या करा, गवर्नर बेसिकली एंटर्ड द एफिशिएंट डोमेन देयर, जो वायलेट क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, राइट। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे एज पर वोल्टर बेगेट द गवर्नर इज बेसिकली a dignified authority and not the real executive, right? Basically that person cross the line, cross the position, right? So this exactly fits the thinker's idea. Got it till here? अब पढ़ लेते हैं कि why we are reading this news, फिर उसके बाद में we'll understand the linkage. So this talks about GS paper 2 as we are understanding the role of governor, right? Center और state का relation, federalism के बारे में we'll discuss. अब उसके बाद में constitutional conventions will understand. After this GS paper it connects political governance के बारे में बात होती है, prelims policy address article 163 will talk about, governor versus council of ministers will talk about, and we'll understand कि constitutional practices कैसे होती हैं, democratic institutional conventions कैसे होते हैं, right? उसके बाद policy address कैसे होती है और procedures क्या क्या है, role क्या है governor को elected government का, right? All of these things will be discussed here, ठीक है। अब शुरू करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो हुआ ये कि सेशन के स्टार्ट में ही केरला लेजिस्लेटिव असेंबली द गवर्नर्स पॉलिसी एड्रेस वाज शेड्यूल्ड, ठीक है। स्पीच इज नॉट पर्सनल, इट इज रिटन एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट कैबिनेट, राइट, एंड दिस इज लेड बाय चीफ मिनिस्टर। लेकिन गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर रिमूव्ड एंड सम चेंज सम पार्ट्स, राइट। और बेसिकली जो गवर्नमेंट ने पहले से अप्रूव किए हुए थे, so these removed parts talked about the problem जो fiscal federalism की भी आती है कि money related जो भी issues होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। bill was basically passed by the Kerala Assembly but it was it was like pending approval। अब issue क्या है, so issue is basically this became a big issue by constitutional convention that the governor must read exactly what the elected government approves। so governor is the constitutional head of the state, right? So not a political decision maker who can change the speech itself, right? So they are expected to act in the advice of the council of minister, है ना। So when the governor changes और basically वो remove कर देते हैं कोई भी speech का part, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप में ही अपनी चीजें में act कर रहे हैं, right? So this goes against what constitutional practice, है ना। और democratic governance का जो spirit है उसके against भी ये चीज जाती है, right? अब इस चीज में चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन took a very unusual step there. He stood up in the assembly, right? उन्होंने clearly इस चीज को point out करा
and basically what governor basically what left out, right, and he read the omitted part himself. जो भी चीजें छोड़ी गई थी वो खुद से उन्होंने रीड करना शुरू कर दिया, right. So this was the duty of governor, but it was done by the chief minister because they had, you know, some issues, and he left some of the parts, right. So this step is very rare, but it was basically taken to protect the authority of the elected government and to basically uphold the constitutional norms as well, right. अच्छा, ये तो कहानी हमारे पास इस चीज की होगी, तो इस चीज पे कॉन्स्टिट्यूशनल ने, राइट, व्हाट डिड द बेसिकली स्पीकर डिसीजन से. सो स्पीकर ऑफ द असेंबली ही आल्सो अग्रीड विद इट व्हाटएवर द सीएम सेड, राइट. और उन्होंने बोला कि कैबिनेट का जो अप्रूव्ड वर्जन था स्पीच का वही बेसिकली ऑफिशियल पॉलिसी एड्रेस होना चाहिए. तो ये डिसीजन लिया गया कि दिस बेसिकली विल सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस आल्सो एंड बेसिकली सुप्रीमेसी ऑफ द इलेक्टेड लेजिस्लेचर आल्सो. ठीक है, और ये जो हमारे पास इन्होंने जो किया है, this is somewhere going against with the policy that we basically this constitution has designed. ठीक है. अब छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है. तो जैसे कि हम लोग समझेंगे कि पॉलिसी एड्रेस क्या है. तो पॉलिसी एड्रेस वो है जो हमारे पास असेंबली में स्टार्टिंग में दिया जाता है, राइट. स्टार्ट ऑफ द सेशन वी गिव, राइट. तो डिलीवर कौन करता है इसको? डिलीवर करता है गवर्नर. लिखा किससे जाता है? ये लिखा जाता है स्टेट गवर्नमेंट से. ठीक है, एंड बेसिकली दिस एक्सप्लेन द गवर्नमेंट्स प्लान और उनकी जो प्रायोरिटीज होती है वो. ठीक है, गवर्नर का रोल क्या होता है? गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज आर्टिकल 163, राइट. एंड गवर्नर इज नॉट फ्री टू चेंज पॉलिसी, हिज रोल इज फॉर्मल एंड नॉट पॉलिटिकल. ठीक है, जो जो चीजें आपको डिजाइन की गई है, जो जो आपको एड्रेस करने के लिए दिया गया है, ओनली दैट यू हैव टू स्पीक, राइट. सो दिस आल्सो टॉक्स अबाउट लॉ वर्सेस कन्वेंशन, right. So what it tells that not everything in the constitution is written clearly, right. Some rules are basically followed because of constitutional convention, right. तो अनरिटन बट बाइंडिंग, तो ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो स्मूथली चल सके. और ये केस हमें कहीं ना कहीं दिखाता है इवन इफ द लॉ इज साइलेंट, कन्वेंशन हेयर मैटर्स. ठीक है, ब्रेकिंग कन्वेंशन कैन क्रिएट व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करेगा, राइट. सो सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप भी यहाँ पर आता है कि बेसिकली रिलेटेड पोर्शंस टॉक्ड अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑन स्टेट, राइट. डिले इन क्लियरिंग स्टेट बिल्स आल्सो. सो ये जो इंसिडेंट है ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा जो स्टेट और सेंटर का टेंशन है वो और ज्यादा ग्रो कर रहा है, राइट. एंड दिस आल्सो क्रिएट्स अ डिबेट बिटवीन fiscal federalism also, right. And there is a role of governor as sometimes seen as center's representative also. ठीक है, so these are the things that we have understood. I hope it is understood to you कि केरला की controversy चल रही थी, right. Governor Rajendra Arlekar was there, chief minister was there, who exposed the changes, और जो भी basically omitted parts थे he did it himself, right. He mentioned it and with this speaker also agreed to it, right. So fiscal federalism की बात हुई, सेंट्रल और स्टेट के क्रिटिसिज्म और उनके बेसिकली गैप की यहाँ पर बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात हो रही है कि एग्जैक्टली ये पॉलिसी एड्रेस कंट्रोल कौन करता है, राइट. कॉन्स्टिट्यूशन की भी यहाँ पर बात हो रही है, स्टेट और सेंटर की रिलेशनशिप की बात हो रही है, फेडरलिज्म की यहाँ पर बात हुई. एंड आफ्टर दिस स्पीकर आल्सो अग्रीड टू इट दैट यस ओनली कैबिनेट अप्रूव्ड स्पीच इज ऑफिशियल एंड दैट शुड बी एड्रेस्ड एंड इट शुड नॉट बी डाइवर्टेड, राइट. सो ये सारी चीजें हमारे पास है. इज दिस अंडरस्टूड टू यू? गॉट इट? वन क्वेश्चन. Why A? Apart from this, what explanation do you have? Make the policy address and governors have the right to present it. The governor can alter the content of the address using discretionary. ये तो भी मैंने बताया that this could not be the case. ठीक है, तो यहाँ से तो अपने आप ही 3 हट गया. So if this is gone, so the correct answer is 1. What is the correct answer? Why I cannot see answers in the chat box? चलो. Is the question visible to you all? हाँ? ये PYQs है. हाँ? 2016-2021 में आया. इजी तो लाइक यू हैव रेड इट नाउ. ठीक है, पढ़ लिया है तुमने तो तुम्हें इजी लग रहा है. गुड फॉर यू, बहुत अच्छी बात है. इससे पहले पता था? नहीं ना, समझाया तो समझ में आ गया तो इजी हो गया. गुड. ओके, लेट्स मूव टू अनदर न्यूज.
Chalo. The Donroe Doctrine, a broker international order. Okay, another important word and another important part that you have to understand. There are two things. या तो ट्रम्प टारगेट पर है या फिर अदर कंट्रीज आर ऑन टारगेट. ठीक है, डिवीजन सिर्फ इन दोनों में ही है. बिकॉज एवरी अदर डे वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रम्प इन आवर न्यूज. ठीक है, अब इमेजिन करो दैट द वर्ल्ड इज लाइक अ बिग नेबरहुड. ठीक है, जहाँ पे कंट्री इज लाइक अ हाउस और बेसिकली देयर इज अ नेबरहुड. राइट नाउ गो बैक टू 200 साल पहले. एट दैट टाइम वन कंट्री इज दिस नेबरहुड वाज बिकमिंग वेरी कॉन्फिडेंट और बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही थी. जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. राइट, तो इसी टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज नॉर्थ और साउथ अमेरिका दे हैड जस्ट बिकम इंडिपेंडेंट. राइट, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है, दे वर स्टिल वेरी पावरफुल और बेसिकली वो कॉलोनाइज करने में बिजी थी अफ्रीका को और एशिया को. राइट, तो यूनाइटेड स्टेट बेसिकली स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर ऐसा हुआ कि यूरोप वापस आया, राइट, एंड बेसिकली स्टार्टेड इंटरफेयरिंग हेयर. राइट, क्योंकि हम तो अभी डेवलप हुए हैं एंड यूरोप इज सच अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, है ना. तो अगर बेसिकली, और वो इतनी कॉलोनाइजिंग भी बना रहे हैं, सो मेनी कंट्रीज दे आर कॉलोनाइजिंग. राइट, तो अगर बेसिकली वो उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू करा, देन व्हाट. राइट, so to stop this, right, what US did, US made a clear statement. That statement is कि basically हमारे पास, you know, what you have to do, you do not have to interfere in us. Right, so this statement was Monroe Doctrine. ठीक है, तो अब इस डॉक्ट्रिन में क्या होता है कि the US told European countries that do not fare in the affairs of countries in the Americas. So this is something that was given to us in the 200 years ago. Right, it's Monroe जो कि आज के टाइम पर दिया गया है. Right, and Donroe is something that was given back then. Right, दोनों का context बताऊंगी that how basically these are relevant and how it is going to affect us and affect, you know, worldwide also. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इस चीज को रोकने के लिए, यूरोपियन कंट्रीज को रोकने के लिए उन्होंने बोला, यूएस ने बोला, that do not interfere in the affairs of the countries in America. Right, and if you will interfere, we will see it as an unfriendly act. ठीक है, so in a very, if you understand in very easy and simple language, that US was saying that this is our area, right, और आप लोग इन्वेड नहीं कर सकते, you do not have anything to say in this. Right, so the idea behind Monroe Doctrine was very clear, that the countries of the Americans were very new and weak and Europe was basically still habit of controlling the other region. ठीक है, तो यूएस को क्या चाहिए था, यूएस को चाहिए था प्रोटेक्शन. ठीक है, प्रोटेक्ट करना कि अपनी कंट्रीज को फ्रॉम रिकॉलोनाइजिंग. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप उस चीज के लिए काम कर रहा था, तो वो चीज इंटरवेन ना करने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया. तो यूनाइटेड स्टेट एट दैट टाइम वाज नॉट पावरफुल इनफ टू enforce it by itself. Right, so initially the Monroe Doctrine worked like a political message, but slowly what happened, the United States became stronger economically भी और military भी टाइम के साथ में, है ना. So when what happened, that this doctrine stopped being just words, it became a big guideline principles of American foreign policy उस टाइम पर. तो उसी टाइम से क्या हुआ, मैसेज एकदम साफ साफ था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज ऑफ लिमिट्स फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस. ठीक है, जो भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर रहेगा उस पर बेसिकली कोई भी बात भी नहीं कर सकता है. तो दिस इज हाउ दिस Monroe Doctrine started as a statement and slowly it turned into a foreign policy idea. ठीक है, अब ये आज के टाइम पे डॉक्ट्रिन मैटर क्यों करती है, दैट विल अंडरस्टैंड. तो अब तुम पूछ रहोगे कि अगर ये इतने टाइम की पहले की बात है तो आज ये डिस्कशन में क्यों हो रहा है. राइट, हो चुकी है वो चीज, तो वी विल रीड इट इन बेसिकली हिस्ट्री या फिर पॉलिटी में पढ़ लेंगे, न्यूज में क्यों आ रही है ये चीज. तो ये जो चीज है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि जो मोनो डॉक्ट्रिन है वो बेसिकली आज भी रेफर हो रही है इन द वे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डील्स विद, यू नो, लैटिन अमेरिका के साथ में, कैरिबियन के साथ में, एंड दिस बेसिकली एट समटाइम्स इवन ग्लोबल पॉलिटिक्स आल्सो. और प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ऐसी है कि वर्ल्ड जो है चेंज हो रहा है. पहले हमारे पास में एक या दो कंट्रीज होती थी हु वर पावरफुल, कॉलोनाइजेशन पर चलता था पूरा का पूरा. राइट, बट नाउ हियर एवरीवन इज डेवलपिंग. द कांसेप्ट इज दैट वी हैव टू टेक ईच एंड एवरीवन टुगेदर. राइट, डेवलपिंग कंट्री के साथ साथ में डेवलप्ड कंट्रीज आर आल्सो देयर, और ऐसा नहीं है कि एक या दो है, देयर आर मेनी नाउ. But if there we are like still using these terms, these kinds of thinking and ideology, then somewhere it is very risky for other world also. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये कह देना that the world has changed a lot and then you have to, you know, come with the statement that stay out, this is my area, right, and this basically is somewhere going against international laws also, है ना. So the idea that one powerful country tells all the other to stay away does not really fit in today's world, right. So because of this, बहुत सारी countries Monroe Doctrine is basically outdated. So they feel it is basically self-serving and it is also unfair, especially now when the Latin countries are more independent.
खुद में कॉन्फिडेंट हो चुकी है, असर्टिव हो चुकी है, राइट? सो दे डू नॉट लाइक बीइंग ट्रीटेड एज समवन्स बैकयार्ड। तो यहाँ पर इस न्यूज में ये वार्न किया गया है अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आज के टाइम पे कंट्री ये चीज अप्लाई करेंगी, ठीक है, दैट यू कैन नॉट इंटरफेयर इन आवर बेसिकली इश्यूज, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आएगा इन टुडेज डिप्लोमेसी स्पेशली, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है रिसेंटमेंट की, ठीक है, जियोपॉलिटिकल डिसीजंस जो हमें साथ में लेने चाहिए, समवेयर दे विल बी क्रिटिसाइज्ड, राइट? तो इसीलिए इस चीज को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है। नाउ दिस इज नॉट द ओनली केस, हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिटी की, राइट? बिफोर देयर वाज द कंसेप्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन, जितनी ज्यादा आप कॉलोनाइज कर सकते हो कंट्री, यू विल बी कंसीडर्ड स्ट्रॉन्ग, राइट? But today that is not the case. Even the smaller and smaller countries, right, they are considered independent, right? We are talking about sovereignty there. So this is why this idea is basically, you know, not considered a good idea. Now, using such old style power politics today does not match a world that talks about equality, जहाँ पर cooperation की बात होती है, mutual respect की बात होती है, international norms की बात करते हैं हम। इसीलिए यहाँ पे ये चीज कंक्लूड की गई है कि कुछ चीज नहीं, सारी की सारी चीजें about this basically concept is wrong, right? So clinging to such doctrine shows that basically, you know, there is a broken and there is a outdated international order, right? और ये order basically where basically we might try to, you know, try to make rights also. So instead of basically basing your decisions on these, there should be like multinational agreements, there should be shared rules, and there should be mutual respect among the countries, ठीक है? अब इस चीज को हिस्ट्री में पढ़ने से पहले we'll understand why we are reading this news. So this news is connecting to us with GS paper 2. Polity और IR के ऊपर बात होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट अदर कंट्रीज आल्सो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और वो सारी चीजें कैसे यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देन यूएस फॉरेन पॉलिसी, वेस्टर्न हेमिस्फेयर का बेसिकली व्हाट ट्रम्प सेड। Then GS paper 1, history, world history, historical context of international relations, and then we are talking about regional security issues also, ठीक है, कि कैसे evolution of global ideas are there, right? How are basically people changing? Monroe Doctrine is very important for prelims, ठीक है, so make sure that you are remembering this keyword, do not forget it. उसके बाद में कंसेप्ट जैसे कि हमारे पास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और नॉन इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अब हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम पहले पिछली चीजों में जाएंगे कि कैसे ये आइडिया फिट नहीं बैठता है, ठीक है। अब आज के टाइम पर यूनाइटेड स्टेट कैरिड आउट अ मिलिट्री एक्शन इन वेनेजुएला, ठीक है, और उसके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया। Now this became big news everywhere. After this happened, many leaders और बहुत सारे commentators around the world they said that this was linked to a kind of rebel that was Monroe Doctrine, है ना? So basically, but people are basically calling a new version of it, ठीक है? जो पुरानी चीजें कभी बोली गई थी नेवीज, now it is coming back in 2026 and this is something that we should be afraid of, right? क्योंकि अगर आप ऐसा माइंडसेट लेकर चल रहे हो that you cannot interfere in our western hemisphere, this is very dangerous. Where we are talking about cooperation, we are talking about mutual respect, we are talking about humanity, है ना? अगर आप ऐसा concept लेकर चल रहे हो, तो this is very dangerous for the world, right? Now, here how basically this Monroe Doctrine is used. तो अभी की सिचुएशन में यूएस लीडर रेफर टू द Monroe Doctrine और उन्होंने एक्सप्लेन किया है that why they acted in Venezuela. So they said that western hemisphere should remain free of threats और कोई भी इंटरफेरेंस की जरूरत हमें वहां पे नहीं है। तो ये अफेक्ट क्या करेगा? यूएस सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा। उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया है, राइट? तो जो कुछ यूएस ऑफिशियल्स है, they even talked about, you know, this Donroe Doctrine, right? तो this which is basically mention of the Monroe Doctrine, right? तो उन्होंने क्या बोला है? Donroe Doctrine, ठीक है, which is the version of Monroe Doctrine, ठीक है। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट जस्ट केम आउट रैंडम, नहीं, people of US, right, they have mentioned it, leaders of US have mentioned it, right? अब something that was basically said in 1823, right, Monroe Doctrine, आज के टाइम पे 2026 में वो वापस सुनाई हुई पड़ रहा है, राइट? तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि यू नो आइडिया स्टिल इन्फ्लुएंसेस, कि कैसे हमारी ये इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज बिहेव करती है, राइट? बैक आइडियाज, हिस्ट्री इन्फ्लुएंसेस देम, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस। नाउ the Monroe Doctrine was made almost 200 years ago, but its ideas are still being used now. Leaders are using it to explain why the US acted in Venezuela. Somewhere they are giving justification also that we are protecting our Western Hemisphere, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हमने ये सब चीजें की है। So they are saying that we want to keep the Western Hemisphere safe, we want to keep it free from interference, right? And this old idea is now being brought into modern politics और security decisions में लेकर देखने को मिल रहा है, right? Now, अब इसके टाइम पर अगर ये आज के टाइम पर उठकर आ रहा है, तो इसका मतलब है क्या? Why this is dangerous to us? तो अगर हम आज की बात करते हैं, तो US is saying in a very strong way, they said it, कि America is our priority, others should not interfere in this,
राइट। और ये कनेक्ट डायरेक्टली करता है ओरिजिनल आइडिया से जो कि हमारे पास है मोनरो डॉक्ट्रिन, ठीक है, दैट नो बेसिकली आउटसाइड पावर शुड बेसिकली meddle in this region, they should not interfere in this region. But now outside powers aren't just European empires कि basically वो colonize कर रहे हैं, US weak है, right? This is not the case. Everyone have nuclear power now. हर किसी की military strong है, right? And if we'll have this kind of concept, तो ये rivalry ही create करेगा, conflicts ही create करेगा, right? So they also include countries like हमारे पास और developed countries है, China हो गई, Russia हो गई, right? How will you stop them, right? So this is a bigger issue, and I've said it before also. एक छोटी सी कमेंट या फिर कोई एक छोटा सा इश्यू कैन क्रिएट बिगर इश्यूज, सो दिस इज व्हाई दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब चाइना और रशिया की बात कर ही रहे हैं तो हमें पता है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। दे आर इंक्रीजिंग देयर पेरेंट्स इन लैटिन अमेरिका, राइट, ट्रेड के थ्रू और इन्वेस्टमेंट के थ्रू, डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू, राइट। सो दिस हैज मेड सम यूएस पॉलिसी मेकर नर्वस एंड दे बेसिकली सी मोनरो डॉक्ट्रिन स्टाइल लैंग्वेज टू जस्टिफाई ग्रेटर, एंड यूएस इज बेसिकली फोकसिंग ऑन दिस रीजन ओनली, राइट। अब यूएस की नई मिलिट्री स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सम रीसेंट रिपोर्ट यूएस मिलिट्री लीडर्स हैव सेड दैट मोनरो डॉक्ट्रिन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, मतलब यूएस प्लान कर रहा है in a bigger role for itself in the western hemisphere, right? So a doctrine from 2 centuries ago is now part of modern defense strategy, which is another keyword that you can write down, ठीक है। अब कोई भी चीज होती है तो हमारे पास हमेशा डिवीजन होता है, या तो उसे कोई सपोर्ट करता है या फिर उसे कोई क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सपोर्टर्स की बात करें तो वो क्या बोल रहे हैं दैट द वर्ल्ड इज बेसिकली हैज न्यू काइंड्स ऑफ थ्रेट्स, जैसे कि ड्रग कार्टल्स हो गए, साइबर इन्फ्लुएंस हो गया, एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स हो गए, राइट। तो ये अफेक्ट करेगा यूएस की सिक्योरिटी को, तो इसीलिए मोनरो डॉक्ट्रिन जो है बेसिकली फ्रेमवर्क दे रहा है डील करने के लिए सिचुएशन को, राइट। और वो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि लैटिन अमेरिका दे शुड लाइक बिकम अ स्पेस जहाँ पे राइवल पावर जो है इन्फ्लुएंस गेन कर सकती है अगेंस्ट द यूएस, राइट। तो बेसिकली इनका ये कहना है वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेबरहुड इन टुडेस वर्ल्ड जस्ट लाइक वी डिड इन 1823 बट अगेंस्ट मॉडर्न थ्रेट्स, जो जो मॉडर्न थ्रेट्स अभी मेंशन किए उसी के चलते हुए हमें बेसिकली ये स्टेप लेना पड़ेगा, तो ये है सपोर्ट में। अब क्रिटिसाइजर्स बेसिकली बोल रहे हैं कि जो ओल्ड डॉक्ट्रिन है, राइट, इट विल नॉट वर्क इन टुडेस टाइम, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज को यूज करोगे तो राइवलरी ही क्रिएट होगी, राइट। यूजिंग ओल्ड डॉक्ट्रिन टू जस्टिफाई करंट एक्शन इज आउटडेटेड एंड दिस विल बी डेंजरस एज वेल। तो कुछ एनालिस्ट ये बोल रहे हैं, वो आर्गुमेंट कर रहे हैं कि रिटर्निंग टू एन ओल्ड आइडिया ऑफ डोमिनेंस ये हमारी डेमोक्रेसी को हार्म करेगा, कोऑपरेशन को हार्म करेगा, सॉवरेनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका कंट्रीज को हार्म करेगा, मतलब जो कंट्रीज दैट शुड बी फ्री टू चूज देयर ओन पार्टनर्स और पॉलिसीज वो उस चीज को हार्म करेगा, राइट। एंड लुकिंग एट द सिनेरियो दैट यूएस इज गोइंग ऑन राइट नाउ, वो इंटरफेरेंस ही दे रहे हैं, राइट। सो दे आल्सो से दैट द यूएस फोकस ऑन पावर पॉलिटिक्स एंड दिस विल लाइक पुश लैटिन अमेरिका क्लोजर टू चाइना और रशिया इंस्टेड ऑफ मेकिंग द रीजन मोर स्टेबल। तो मतलब if the US tries to dictate what the basically other countries do in the region, तो ये basically distrust create करेगा और conflict create करेगा instead of the peace. Got it? Why I cannot see a single chat in the box? कुछ नहीं चल रहा है तुम लोगों के दिमाग में? तो अभी पहले क्या होता था कि मोनरो डॉक्ट्रिन वाज कीपिंग अबाउट यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स अवे फ्रॉम अमेरिका, ठीक है, ये कंसेप्ट था। आज के टाइम पे वर्ल्ड हैज मेनी पावरफुल कंट्रीज, चाइना है, रशिया है, यूरोप है, राइट, एंड बेसिकली इंडिया इज आल्सो देयर। सो दीज आर लाइक इंटरनेशनल रूल्स, ठीक है, जैसे कि यूएन चार्टर भी हमारे पास में है। तो दे स्ट्रेस व्हाट, दे स्ट्रेस इक्वालिटी, पीस की बात होती है यहाँ पर, राइट, नॉन इंटरफेरेंस की बात होती है, पीसफुल रिलेशंस की बात होती है, एंड दे आर बेसिकली रीजनल ग्रुप्स आल्सो, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स है जहाँ पे कंट्रीज आर सपोज टू वर्क टुगेदर। सो अप्लाइंग एन आइडिया व्हिच इज ऑफ 19th सेंचुरी डजंट मेक सेंस हियर, राइट। अब ये डेंजरस क्यों मेंशन किया गया है इस न्यूज में, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है मॉडर्न मोनो डॉक्ट्रिन जो है नाउ बेसिकली वो उस टाइम पे तो यूज हो गया था, बट चाइना में जस्टिफाई इट्स क्लेम ओवर ताइवान आल्सो, ठीक है, फिर तो यही चीज शुरू हो जाएगी। रशिया विल जस्टिफाई इट ओवर इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेबर्स आल्सो, ठीक है, फिर जस्टिफिकेशन देना शुरू हो जाएगा कि हम तो अपनी टेरिटरी को सेफ रखने की बात कर रहे हैं, राइट। सो अदर पावर्स विल आल्सो कॉपी दिस बिहेवियर, ठीक है, तो वही वाला आइडिया वापस से कॉलोनाइजेशन वाली चीजें शुरू हो जाएंगी। बट फिर वही चीज है कि इवन स्मॉल कंट्रीज, राइट, दे आर आल्सो डेवलपिंग देमसेल्व्स, दे आर आल्सो मेकिंग देमसेल्व्स स्ट्रांग इन मिलिट्री पावर्स, राइट। सो दिस विल लीड वर्ल्ड वेयर कहाँ पे होगा कि रूल्स जो भी हमने बनाए हैं अबाउट पीसफुल वो सारे इग्नोर हो जाएंगे। पावर जो होगी हमारे पास वो ज्यादा मैटर करेगी देन द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी हैव मेड फॉर पीसफुल नेगोशिएशंस। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट क्लिंचिंग टू सच डॉक्ट्रिन शोज अ ब्रोकन इंटरनेशनल रूल्स एंड इट शुड बी मेंशन्ड। अब यहाँ पे दो चीजें हमारे पास आएंगी, पहले तो है यूनिलैटरलिज्म, ठीक है।
जब हम यूनिलेटरलिज्म की बात करते हैं, इसका मतलब है एक्टिंग अलोन, कि कंट्री बेसिकली एक कंट्री है, वो सारे डिसीजन मेकिंग्स करेंगी, ठीक है, किसी से बिना पूछे या किसी से बिना कंसल्ट करे। जैसे कि कोई एक कंट्री है, वो डिसाइड कर दिया रूल्स फॉर होल रीजन, राइट, इवन इफ अदर कंट्रीज आर नॉट अग्रीइंग टू इट, बट स्टिल दे आर मेकिंग इट, राइट, सो दैट इज नोन एज व्हाट, यूनिलेटरलिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब है दैट बेसिकली ऑल द कंट्रीज आर एक्टिंग टुगेदर, राइट, कंसल्ट करके, कॉपरेशन करके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके वो बेसिकली काम कर रहे हैं। सो बेसिकली दे यूज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ट्रीटीज हो गई, इंटरनेशनल लॉज हो गए, राइट, इन सब चीजों को लेके वी आर मूविंग टुवर्ड्स पीसफुल, राइट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स कोऑपरेशन, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पास आती है मल्टीलेटरलिज्म में, ठीक है। सो दीज आर द टर्म्स दैट वी हैव अंडरस्टूड टू। न्यूज समझ आ गई? Why I cannot see any chat in the box? What did you understand from this news? Chalo. One question. I hope the question is visible. Why see? What is the correct answer, chat? Yes. Yes, the correct answer that we have is C, opposition to external interference in specific geographical regions. तो मतलब ये है कि हम जो भी पावर, जो भी आउटसाइड पावर्स है, राइट, उनको एक पर्टिकुलर रीजन से बाहर ही रखेंगे, राइट। सो द करेक्ट आंसर दैट वी हैव इज सी। I hope this concept is clear to you, ठीक है, कि डोनरो डॉक्ट्रिन, राइट, दिस बेसिकली केम आउट, जो कंसेप्ट कभी 1823 में आया था, नाउ वी आर अगेन यूजिंग इट in 2026, right, but it will not work here as before European countries were basically they were colonizing, right, but and US was not that much, basically military में इतना ज्यादा उनका हाथ नहीं था, but then again here in today's time, especially in 2026, every single country is developing itself, making militarily strong itself, right, so this concept will not work in today's time, right, अगर basically वो चीज करने की कोशिश भी करेंगे तो it will lead conflict only। जैसे पहले कॉलोनीज बना ली जाती थी और इसी के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग पावर और वीक पावर देखा जाता था, बट दिस विल नॉट हैपन इन टुडेस टाइम, राइट, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। आज के टाइम पे रेलेवेंट है? बिल्कुल नहीं रेलेवेंट है, क्योंकि ग्लोबली जो है कहीं ना कहीं यूएस का इंटरेस्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, वो जस्टिफाई कर रहा है समवेयर, राइट, बट इट विल नॉट वर्क इन टुडेस टाइम। सो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट यूनिलेटरलिज्म, जहां पे बेसिकली देयर इज वन कंट्री हु इज मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, और बेसिकली चाहे अदर कंट्रीज आर अपोजिंग इट, बट those rules and regulations should be implemented, right? Doctrine as justification oppose China and Russian influence, address modern threats also. When we talk about multilateralism, they act together, right? Here we are talking about cooperation, here we are talking about peace, here we are talking about rules and regulations, right? Every country basically sit together and they make rules and regulations towards the peace. Now, power politics in multiple world, is it possible? So time to work together and not to dominate like basically US is did, right? So जैसे Venezuela पे attacked when they justifying it, this is something that we all should criticize worldwide. I hope this is news is understood to you. Now let's move to another news of today. Now, imagine that you want to go on a long trip, but every time you take a flight, the plane you fly gets thrown away after landing. ठीक है, आप फ्लाइट पे जा रहे हो, फ्लाइट खत्म होगी, that plane is basically wasted after landing, है ना? So you must buy a new plane for your next trip. Now, इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, बहुत वेस्टफुल है रिसोर्सेज के लिए, है ना? Now think of that how normal flights work in real life. Plane takes off, that land, fly again and again, right? So that's reusability. Right, so we are understanding that
दैट वुड बेसिकली इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव अगर हम वापस से कोई प्लेन बनाते हैं फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, बिकॉज दैट इज यूज्ड वन टाइम, राइट? सो दिस बेसिक आइडिया इज नाउ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू स्पेस ट्रैवल आल्सो, है ना? सो बेसिकली पहले कैसे स्पेस काम करते थे, इन द ओल्ड डेज ऑफ स्पेस मिशन रॉकेट्स वर बिल्ट टू द यूज्ड वंस ओनली, और लॉन्च के बाद में, सैटेलाइट्स के बाद में, स्पेसक्राफ्ट के बाद में, दीज रॉकेट पार्ट्स वर लाइक फॉल बैक टू द ओशन, या फिर दे वर बर्न अप, or basically they were re-entry, right? So this meant that every mission was very expensive because they had to build a new rocket every time, है ना? तो imagine करो that we would do space travel like aliens, तो रॉकेट दैट कुड लॉन्च, कम बैक, और बेसिकली वापस से यूज हो सकता है हमारे नेक्स्ट मिशन के लिए। सो दैट्स रियूजेबिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है? अब आज के टाइम पे रियूजेबिलिटी मैटर क्यों करता है? क्योंकि रियूजेबल रॉकेट्स, जैसे कि रियूजेबल एयरप्लेन्स हमारे पास में, जो कि आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, हम उसे बेसिकली फेंक तो नहीं देते हैं, है ना? वापस बार बार यूज होते रहते हैं, तो वही आइडिया बेसिकली हम लोग स्पेस में भी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली की पार्ट्स बेसिकली कम बैक सेफली टू अर्थ एंड दे आर रिफर्बिश्ड एंड दे आर यूज्ड अगेन, सो दिस मेक्स फ्यूचर लॉन्चेस चीपर, और हमारे पास और ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो है हमारे पास स्पेसक्राफ्ट्स मिलेंगे। सो रियूजेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजंस। तो पहला तो है कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, है ना? जो हमें पार्ट्स बार बार बेसिकली बनाने पड़ते थे, नाउ वी डोंट हैव टू मेक इट अगेन, right? First of all, this is cost effective access to space, मतलब launching rocket is very expensive. तो पहले क्या होता था, जो मिशंस होते थे, few missions were possible, but if a rocket can be used multiple times, तो cost per launch also will go down, right? तो इसका मतलब ये है कि और ज्यादा स्टार्टअप्स होंगे, यूनिवर्सिटीज, कंट्रीज, they can send satellites और experiment into spaces also. तो ये जो स्पेस है दैट बिकम्स मोर एक्सेसिबल साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और बिजनेस के लिए। फिर उसके बाद सस्टेनेबल स्पेस ट्रेवल की बात कर लेते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, मतलब अगर हम जो ये रीयूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा, है ना? हमारा जो वेस्ट होगा वो कम होगा, राइट? इवन इन द स्पेस, और होगा मटेरियल्स जो है हमारे पास यूज हो जाएंगे एफिशिएंटली, और ये जो रियूजेबिलिटी है इकोनॉमिकली भी एनवायरमेंटली भी दोनों ही फ्रेंडली रहेगी, ठीक है? तो बेसिकली इफ वी टेक एन एग्जांपल, सो एजेंसीज एंड कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड, राइट, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, दे आर नाउ वर्किंग ऑन रियूजेबल रॉकेट्स, राइट? तो ये जो रॉकेट्स है, दे राइज इनटू द स्पेस, complete their mission, return earth back safely, and they are prepared for the next launch. तो ये जो नई अप्रोच है इज मेकिंग स्पेस ट्रेवल और ज्यादा चीपर बना रहा है, फ्रीक्वेंट बना रहा है, और ज्यादा सस्टेनेबल बना रहा है, ठीक है? सो दिस इज द न्यूज दैट वी हैव। एक बार रेलेवेंस पढ़ लेते हैं। तो जीएस पेपर 3 की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वी आर टॉकिंग। रिलायंस में इट विल कम इन रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, इसरो एंड प्राइवेट स्पेस कंपनीज, ऐसे में इट कैन कम एज टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, ग्रीन एंड सस्टेनेबल इनोवेशंस, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम लोग इस न्यूज के साथ में कवर करने वाले हैं। अब इस न्यूज में क्या बताया गया है कि स्पेस हैज बिकम अ ग्लोबल इंडस्ट्री नाउ, ठीक है? स्पेस इज नो लॉन्गर ओनली अबाउट साइंस या फिर नेशनल प्राइड के लिए, ठीक है? अब ये एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस सेक्टर में है, जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है वर्थ ओवर $1 ट्रिलियन बाय 2030, ठीक है? तो इसका बेसिकली नंबर से बता रहा है दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। तो कंट्रीज और बेसिकली प्राइवेट कंट्रीज, दे आर यूजिंग स्पेस फॉर कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गए, इंटरनेट हो गए, नेविगेशन के लिए मतलब जीपीएस, और वेदर फोरकास्टिंग के लिए, डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो अगर हम ये बेसिकली कॉस्ट लोअर कर देते हैं, ठीक है, तो स्पेस ट्रेवल बेसिकली इट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? अब स्पेस जो हमारे मिशन है वो इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिशन वी हैव। पहला तो है हमारे पास सैटेलाइट मिशन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सैटेलाइट मिशन, what we have in this, we have basically there is no human present in this, ठीक है? और दूसरा हमारे पास है ह्यूमन स्पेस मिशन। तो ह्यूमन स्पेस मिशन जो है वो 3 से 5 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, राइट? एंड बेसिकली इट नीड्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, मतलब ऑक्सीजन, फूड, वाटर, राइट? और बेसिकली वेरी हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड शुड बी देयर, बैकअप सिस्टम भी होना चाहिए अगर कुछ फेल हो जाता है, डिटेल प्लानिंग होनी चाहिए। तो satellite missions are simple and mostly one way trips, right? So these two types of missions we have and this is why they are expensive. तो बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है? बेसिक प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि व्हेन अ रॉकेट लॉन्चेस, तो हमारे पास दो बेसिकली मेजर एनिमीज है। पहला तो है ग्रेविटी, ठीक है? तो बेसिकली ग्रेविटी इज बेसिकली अर्थ पुल्स द रॉकेट डाउन, ठीक है? आई एम सॉरी फॉर दिस, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी, तो ये रॉकेट को नीचे खींच रहा है, राइट? देन अर्थ रॉकेट पुल्स डाउन, फिर उसके बाद है एयर रेजिस्टेंस, ठीक है? मतलब ड्रैग करता है यहाँ पे,
right? So basically when air slows down, so to move forward in space जहाँ पे there is no air, a rocket throws a exhaust goes backward at a very high speed. तो ये basically क्या follow करता है न्यूटन का थर्ड लॉ, that is every action has an equal reaction and opposite reaction, right? Got it? अब weight की भी problem होती है इसके साथ साथ में, weight की problem होती है. तो this is basically explained by one of the rocket equation. Now अगर इसको आसान शब्द में समझा जाए तो there is basically the more fuel you carry, the heavier the rocket becomes, right? So you need even more fuel to lift that fuel. So this creates a vicious circle. तो रिजल्ट क्या होता है इससे कि 90% का रॉकेट जो वेट है इज ऑफ फ्यूल ओनली, राइट? और फ्यूल टैंक is less than 4%, right? Less than like 4% in the actual satellite, right? So rockets are very inefficient there, right? So जो हमारे पास रॉकेट्स भी है वो भी स्टेजेस में डिवाइड किए गए हैं फॉर दिस रीजन, ठीक है? तो ये वाली चीज रियूजेबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है, सो दैट इट कुड बी गेम चेंजर ऑल्सो, ताकि हमारे पास बेसिकली एनवायरमेंट को भी सेफ्टी मिले और उसके बाद में चीपर भी ये चीज रहे, ठीक है? So basically reusable rockets are designed so that major parts come back safely and they can be used again. So this basically shifts space travel from a use and throw model and to a transportation model, right? जैसे कि हमारे पास airplanes हो गए. Is this news understood to you? This is the question homework that you have, and that is it for today. I'll see you tomorrow at the same time, and for the PDF you'll have access of PDF in the comment section in a few hours. Thank you. Thank you.